Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 2 का मॉड्यूल 3 डेमोक्रेसी एट वर्क लेसन 19 गवर्नेंस एट दी स्टेट लेवल जो कि सिविक्स का चैप्टर है। आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, today we are going to study lesson 19 and chapter topic name is governance at the state level. So get ready. As you have read, India is a federation having governments at two levels, state level and union or central level. Every citizen is related to and influenced by the governments functioning at both the levels. We are all guided by the laws made by state and union legislatures, administered by both the governments and get justice from courts at both the levels. All the three branches of government, executive, legislature and judiciary, exist and function at both the levels. For a comprehensive understanding of the system of governance, this lesson discusses the institutions and processes of the government at the state level. तो आप लोगों ने जैसा कि पढ़ रखा है कि जो इंडिया है उसमें फेडरेशन सिस्टम है और इसके जो गवर्नमेंट्स है वो दो लेवल्स पे काम करते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टेट लेवल और हमारा जो सेकंड है वो यूनियन या फिर सेंट्रल लेवल है। जितने भी यहाँ के सिटीजन हैं वो यहाँ की गवर्नमेंट के फंक्शनिंग से जो दोनों लेवल पे काम करते हैं उनसे ये प्रभावित है और हम लोगों को लॉज अच्छे से गाइड करते हैं जो कि स्टेट और यूनियन लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये दोनों गवर्नमेंट करते हैं और ये जो जस्टिस है कोर्ट से जो हम लोग को मिलता है न्याय वो दोनों लेवल पे मिलता है। और हमारे गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, और ये इनका जो फंक्शन है ये दोनों लेवल पे अपना फंक्शन करते हैं। और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग गवर्नेंस के सिस्टम को इस लेसन में डिस्कस करेंगे कि इनका जो इंस्टीट्यूशन है, इनका जो गवर्नमेंट का जो भी प्रोसेस है वो किस तरह से स्टेट लेवल पे होता है। Governor, you have studied in the lesson or constitutional values and the Indian political system that India has a parliamentary form of government. Both at the state and union levels, it has institutions and processes in place like any other parliamentary system. At the state level, there is a governor in whom the executive power of the state is vested by the constitution. But the governor acts as a nominal head and the real executive powers are exercised by the Council of Ministers headed by the Chief Minister. तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कि जो इंडिया है उसके जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है। जो स्टेट और हमारा जो यूनियन लेवल है उनके जो इंस्टीट्यूशंस है और उनके जो प्रोसेसेस है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। स्टेट लेवल पे जो गवर्नर है जो कि एग्जीक्यूटिव पावर है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनको दिया गया है, लेकिन जो गवर्नर है वो एक नॉमिनल हेड की जैसा एक्ट करते हैं और वो रियल एग्जीक्यूटिव पावर से जिनका एक्सरसाइज किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो कि चीफ मिनिस्टर के साथ हेड करते हैं। Appointment. The governor of a state is appointed by the President of India. In order to become a governor, a person must have the following qualification. She must be a citizen of India, must be at least 35 years old, and should not hold any office or profit during his or her tenure. If a person is a member of either house of the parliament or the legislature of a state or a member of the council of ministers at the national or the state level and is appointed as governor, she resigns that post. The governor is appointed for a term of 5 years but normally holds offices during the pleasure of the president. The pleasure of the president means that the governor may be removed by the president even before the expiry of his or her term. She may also resign earlier. However, in reality, while appointing or removing the governor, the president goes by the advice of the prime minister. तो अगर किसी को एक स्टेट का गवर्नर बनना है तो वो कैसे बन सकते हैं, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और
यहाँ की गवर्नर बनने के लिए उनके पास कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, उनका मिनिमम जो एज है वो 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, और अपने वो ऑफिस के मतलब कि अपना जब गवर्नर बनना तो उनको उस टाइम कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अपने टेन्योर के दौरान नहीं होल्ड करके रखना है। अगर वो किसी भी के सदस्य किसी भी चीज के, या तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट की या फिर लेजिस्लेचर स्टेट के, या फिर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्य हो नेशनल या फिर स्टेट लेवल पे, तो अगर उन्हें एज अ गवर्नर अपॉइंट किया जाता है तो उन्हें वो पोस्ट छोड़ना पड़ता है। और जो गवर्नर है वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और नॉर्मली वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के तक ही वो उस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट का प्लेजर मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नर है उनको उनके एक्सपायरी से पहले प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, और या फिर वो भी खुद पहले रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है ना कि जब प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं या फिर उन्हें रिमूव करते हैं तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के साथ ये काम करना पड़ता है। Powers of governor. With every job, there are powers attached. The powers of the governor are conferred by the constitution to enable him or her to perform his her functions effectively as a head of the state. तो हर एक जॉब से रिलेटेड उसके पावर्स भी अटैच्ड होते हैं। जो गवर्नर का पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिखा गया है, और उन्हें यहाँ पे जो फंक्शंस दिए गए हैं तो वो कैसे एक स्टेट के हेड बनकर उनका क्या क्या फंक्शन है वो यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। द पावर्स ऑफ द गवर्नर कैन बी कैटेगराइज्ड एज एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स एंड डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो चलिए हम लोग इन पावर्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। Executive powers. The Constitution of India vests the entire executive powers of the state in the governor, who performs these functions according to the aid and advice of the Council of Ministers with the Chief Minister as its head. She appoints the Chief Minister and other members of the Council of Ministers. She also appoints persons on important posts such as the chairpersons and members of the State Public Service Commission, State Election Commission, State Finance Commission, and the Advocate General. Judges of the courts other than the High Court, she is consulted when the judges of the State High Court are appointed by the President. But in practice, the governor's powers are only formal. He appoints only that person as chief minister who is the leader of the majority in the legislative assembly. She appoints members of the council of ministers only on the advice of the chief minister. All other appointments are made and executive functions are performed by him, her exactly as पर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो भारत का संविधान है उसका जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो स्टेट के पास होता है, गवर्नर के पास, जो कि जो भी फंक्शन करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, जो कि स्टेट के हेड होते हैं। और जो चीफ मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंट उन्हें किया जाता है, और वो जो ऐसे पर्सन होते हैं ना जो एज अ चेयरपर्सन वहां पे फंक्शन करते हैं, या फिर हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हो गए, स्टेट इलेक्शन कमीशन के हो गए, स्टेट फाइनेंस कमीशन, या फिर एडवोकेट जनरल, जजेस ऑफ द कोर्ट्स, सिर्फ हाई कोर्ट को छोड़ करके, तो इन सबको अपॉइंट किया जाता है। और जो जज होते हैं स्टेट के हाई कोर्ट के वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में अगर हम लोग देखें तो जो गवर्नर्स है उनके पास सिर्फ फॉर्मल पावर्स होती हैं, और वो अपॉइंट किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी के लीडर होते हैं, मीन्स हेड होते हैं। और वो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और भी अदर जो मेंबर्स है उनका अपॉइंटमेंट होता है, मीन्स उनको अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। और जितने भी अदर अपॉइंटमेंट्स है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे किया जाता है।
Legislative powers. The governor is an inseparable part of the state legislature, and as such, she has been given certain legislative powers. She has the right to summon and prorogue the state legislature and can dissolve the state legislative assembly. She addresses the state legislative assembly or the joint sessions of the two houses of the legislature. She may nominate one person of Anglo-Indian community as a member of legislative assembly in case of communities not represented. She also nominates one-sixth of the members to the Legislative Council if the state has a bicameral legislature. Once again, in real practice, the governor does all this on the recommendations of the Council of Ministers headed by the Chief Minister. A bill passed by the state legislature becomes a law or act only when the governor gives assent to it. तो स्टेट का जो इंसेपरेबल पार्ट है वो हमारे गवर्नर है स्टेट लेजिस्लेचर के, और उन्हें कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। वो स्टेट लेजिस्लेचर को या तो सम्मान कर सकते हैं, मीन्स उसको बुला सकते हैं, या फिर उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। जो गवर्नर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो ज्वाइंट सेशंस होते हैं दोनों हाउसेस के लेजिस्लेचर में, वो उसको एड्रेस भी करते हैं, और वो एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जब उनका कम्युनिटी उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है तब। और या तो फिर वो 1/6 जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो वो वहां पे भी उनको नॉमिनेट करते हैं अगर उनका जो स्टेट है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाला हो तब। एक बार फिर हम लोग देखते हैं कि अगर रियल प्रैक्टिस में जो गवर्नर है उनके पास जितने भी ये पावर्स है, तो वो इन पावर्स का यूज कैसे करते हैं, तब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जाते हैं, उनकी रिकमेंडेशंस के आधार पर गवर्नर अपना लेजिस्लेटिव पावर्स को फंक्शन करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी बिल तभी पास होता है, कभी वो लॉ बनता है, तभी वो एक्ट बनता है जब गवर्नर उसको एसेंट देते हैं। फाइनेंशियल पावर्स. You must have read in the newspapers that every year the budget is presented by the government in the legislature for its approval. In fact, the budget, that is the annual financial statement of the state, is prepared and presented by the state finance minister before the state legislature on behalf of the governor. Moreover, no money bill can be introduced in the state legislature without the recommendations of the governor. She also has control over the state contingency fund. तो हम लोग फाइनेंशियल पावर्स के बारे में पढ़ते हैं कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हर साल बजट प्रेजेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा लेजिस्लेचर में उनके अप्रूवल के लिए। इनफैक्ट ये जो बजट है वो क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि स्टेट प्रिपेयर करता है और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर के सामने स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करता है गवर्नर के बिहाफ में। इन सब के अलावा कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में जब तक के लिए गवर्नर उसको रिकमेंड नहीं करे, और उनके पास कंट्रोल भी होता है जो स्टेट कॉन्टिजेंसी फंड है उसके ऊपर। डिस्क्रिशनरी पावर्स. एज वी हैव सीन अर्लियर, the governor acts on the advice of the state council of ministers. This means that in reality the governor has no powers, but according to the constitution, under special circumstances, she may act without the advice of the council of ministers. Such powers which are exercised by the governor on his own are called discretionary powers. Firstly, if no political party or coalition of parties wins a clear majority in the legislative assembly, she can exercise her discretion in inviting a person to be the chief minister. Secondly, the governor acts as a link between the center and the state. She can reserve any bill passed by the state legislature for the consideration of the President of India. Thirdly, if she thinks that the government of the state is not functioning according to the constitution, she can report to the president. In that case, under Article 356, the president's rule is imposed, the state council of ministers is removed, and the state legislature is dissolved or put under suspension. During such emergency, the governor rules on behalf of the president.
तो हम लोगों ने जैसा कि पहले देखा कि जो गवर्नर है वो तभी एक्ट करते हैं जब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको एडवाइस देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि रियलिटी में गवर्नर का कोई भी अपना पावर्स नहीं होता है, लेकिन संविधान के अनुसार उनको एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड किया गया है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना एडवाइस किए भी एक्ट कर सकते हैं। और ऐसे पावर्स को ही हम लोग बोलेंगे क्या कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है जो गवर्नर खुद से उस एक्ट को करे। फर्स्टली अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई भी कोalition पार्टीज है, वो कभी क्लियर मेजोरिटी के साथ नहीं जीतते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो जो गवर्नर है वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करेंगे और वो एक ऐसे पर्सन को इनवाइट करेंगे टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। मीन्स उस स्टेट के एक चीफ मिनिस्टर को वो खुद से इनवाइट कर सकते हैं। सेकेंडली जो गवर्नर है वो एक लिंक का काम करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, और वो किसी भी बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर में पास किया जाता है ताकि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंसीडर कर सके। और थर्डली अगर वो सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट है एक स्टेट का वो हमारे संविधान के अनुसार फंक्शन सही से नहीं कर रहा है, तो वो आराम से प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दे सकते हैं। इस केस में जो आर्टिकल 356 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रेसिडेंट का रूल, उस स्टेट लेजिस्लेचर में जब उसका डिसॉल्वमेंट हो जाएगा तो प्रेसिडेंट का रूल चलेगा और स्टेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है स्टेट के उनको रिमूव कर दिया जाएगा। और वैसे इमरजेंसी के टाइम में गवर्नर उस स्टेट पे रूल करेंगे प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। Relationship between the governor and the council of ministers. As we have seen above, the state executive consists of the governor, the chief minister, and the council of ministers. Normally, the governor exercises all her powers on the advice of the council of ministers. We know that when the chief minister is sworn in, the government simply performs a formal duty. She invites the leader of the majority in the state legislative assembly to be sworn in as the chief minister. The members of the Council of Ministers are also appointed by the governor on the recommendations of the chief minister. The majority can consist of members of legislative assembly belonging to one party or a group of parties and independents. However, when there is no clear majority in the House electing one candidate as its leader, the governor can exercise her discretionary power. Similarly, although theoretically the ministers hold their offices during the pleasure of the governor, in practice the chief minister and the council of ministers remain in office till they enjoy the support of the majority in the legislative assembly. The governor can dismiss them only when the president's rule is imposed. तो जैसा कि हम लोगों ने ओपन में देखा कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसमें गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। नॉर्मली जो गवर्नर है वो अपने जितने भी पावर है वो उसको तभी एक्सरसाइज करते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको एडवाइस देते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है वो किसी भी स्टेट के हेड होते हैं और जो गवर्नर है वो सिंपली अपने फॉर्मल ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं। और वो जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं उनको वो इनवाइट करते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर के लिए। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा जब चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं। और ये जो मेजोरिटी है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिलोंग करेंगे एक पार्टी से या फिर ग्रुप ऑफ पार्टी से। मीन्स हम लोग इसको कह सकते हैं कॉलिजन पार्टी, ठीक है, या फिर वो इंडिपेंडेंट है फिर भी वो उसके सदस्य हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है हाउस में तो जो एक कैंडिडेट है उसका जो लीडर है तो गवर्नर उसको क्या कर सकता है कि अपने डिस्क्रिशनरी पावर के द्वारा उसको एज अ लीडर बना सकता है। सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि जो भी मिनिस्टर्स है वो अपने ऑफिसेस को होल्ड करते हैं जब तक के लिए गवर्नर का प्लेजर में गवर्नर उसको जब तक चाहते हैं उसको अपने ऑफिसेस को होल्ड करने देते हैं। और प्रैक्टिस में जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो ऑफिस में रहते हैं जब तक के लिए उनको लेजिस्लेटिव असेंबली मेजोरिटी में सपोर्ट करते हैं। और जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के रूल के इम्पोज होने पर उन चीज को डिसमिस कर सकते हैं। The chief minister is required to communicate to the governor all the decisions of the council of ministers. She may call for necessary information related to the state administration. If a minister individually takes a decision, the governor may ask the chief minister to place such a matter for consideration of the council of ministers. It is true that
The governor is a nominal head and the real powers are exercised by the Council of Ministers headed by the Chief Minister. But it will not be correct to say that the governor is just a constitutional or ceremonial head. She can exercise her powers effectively under certain circumstances, especially when there is political instability in the state. Since he shares a link between the central and the state, she becomes very effective if the central government sends directions to the state government. The discretionary power also make the governor to act as a real executive in particular circumstances. तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके पास रिक्वायरमेंट होती है कि वो गवर्नर से कम्युनिकेट करे और जितने भी डिसीजंस है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलके ले और वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है उनके लिए वो कॉल कर सकते हैं। एक जो मिनिस्टर है वो इंडिविजुअली डिसीजन ले सकते हैं और जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि जो भी आपने डिसीजन लिया है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसिडरेशन पे लिया है। और ये भी सही है कि जो गवर्नर है वो नॉमिनल हेड होते हैं और जो रियल पावर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा एक्सरसाइज किए जाते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेडेड होते हैं। लेकिन ये चीज सही नहीं है। जो गवर्नर है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर सेरेमोनियल हेड ही नहीं है बल्कि वो अपने पावर्स को भी इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और स्पेशली जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो स्टेट में तब। और वो एक लिंक का भी काम करते हैं सेंट्रल स्टेट के बीच में और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होते हैं अगर जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को देता है तो वो गवर्नर के थ्रू देता है। और ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का वो एज अ रियल एग्जीक्यूटिव इनको बनाने के लिए काफी है। Now based on your understanding try to solve in text questions 19.1. वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.